Hello, welcome to your channel Study You Can. This video is all about electromagnetic spectrum and its broad classification. So first let me tell you about the very interesting Newton's experiment. सबसे पहले अब हम लोग न्यूटन एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं. तो इन अ डार्क रूम, if white light is let to fall through very small aperture obliquely at one surface of the prism, then we find that due to dispersion of light, this white light splits into 7 colors and we obtain a band of 7 colors on white screen. व्हाइट स्क्रीन पर 7 कलर का एक बैंड हमें ऑब्टेन होता है. तो दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम. दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and very interesting experiment that white light splits into 7 colors and there is a display of 7 different colors on white screen. So on the basis of this experiment, the conclusion is that the white light is made up of 7 colors, or white light contains 7 colors. But this is not the fact. Actually, white light contains radiations of millions of colors. White light जो होता है इसमें millions of colors के radiations होते हैं. But just for simplification के लिए we consider only 7 colors which are perfectly distinguished. So for simplification we consider only 7 colors. Now the point is that here our topic is electromagnetic spectrum. तो ये जो white light है it splits into 7 colors. There is distribution of 7 colors. This is the color band. Then this band of light is known as spectrum. So the question is that is this limit explains the entire expansion of a spectrum? So no, this is very small part of the entire electromagnetic spectrum. जो electromagnetic spectrum है white light का, उसका ये एक बहुत छोटा पार्ट है. This is the light coming from the sun, or if we consider every sort of electromagnetic wave. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि द इंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग को पढ़ना है द इंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. What are the different types of electromagnetic waves and what are their distribution? इसका distribution किस ढंग से है? तो see here, this is visible spectrum. The splitting of 7 white light into 7 colors, which can easily be detected by our eyes. यानी ये जो 7 colors है, ये जो spectrum है, the human eye can respond to it, or human eye detect it or see it. And इससे ऊपर का जो red end और violet end के beyond भी इसका expansion है. रेड एंड के बियॉन्ड भी है और ऑन अदर साइड वायलेट एंड के बियॉन्ड भी है. तो इसको एक चीज यहां समझ लेना है कि द डिस्ट्रीब्यूशन द सीक्वेंस ऑफ द कलर इन द स्पेक्ट्रम कैन बी अंडरस्टूड और कैन बी लर्न बाय लर्निंग द वर्ड विबग्योर. विबग्योर के सीक्वेंस में ही ये कलर्स अरेंजमेंट होते हैं. जैसे कि सबसे टॉप में रेड कलर है, उसके नीचे
orange, then yellow, then green, then blue, then indigo और then violet. तो ये जो कलर का जो सीक्वेंस है, दिस कैन इजिली बी रिमेम्बर्ड बाय द वर्ड विबग्योर. विबग्योर वर्ड से इसको हम लोग याद कर सकते हैं कलर का सीक्वेंस क्या है इन स्पेक्ट्रम. तो सबसे टॉप में आपका रेड है, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो और सबसे लास्ट में क्या है, वॉयलेट है. तो सी हियर एट द टॉप आपका रेड कलर है. वाई? इसका रीजन क्या है? और सबसे बॉटम में वॉयलेट कलर है. तो रेड कलर का स्पीड मैक्सिमम है, दैट इज वाई यहां पर बेंडिंग लिस्ट हुआ है. और वॉयलेट कलर का स्पीड सबसे कम होता है विजिबल स्पेक्ट्रम में, इसलिए इसका बेंडिंग सबसे ज्यादा है ना. स्पीड कम जिसका रहेगा उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा, स्पीड जिसका ज्यादा होगा उसका बेंडिंग सबसे कम होगा. ठीक है. सी हियर, दिस स्पेक्ट्रम डज नॉट एक्सप्लेन द इंटायर रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम. This is only a small part of the entire electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum जो है उसका ये एक केवल स्मॉल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. There is expansion beyond red end. रेड एंड के बाद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक्सपेंशन है और फिर वायलेट एंड के बाद भी है. तो क्या है कि दिस इज ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम और बियॉन्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बियॉन्ड रेड एंड, रेड एक्सट्रीम के बाद का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, द ह्यूमन आई कैनॉट डिटेक्ट इट. उसको ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकता है. और वायलेट एंड के बियॉन्ड भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको भी ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकता है. तो द स्पेक्ट्रम बियॉन्ड रेड एंड एंड वायलेट एंड, दैट इज नोन एज इनविजिबल स्पेक्ट्रम. उसको बोला जाता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम. तो इनविजिबल स्पेक्ट्रम में हम लोग समझ लेते हैं कि रेड एंड के जस्ट बाद का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका रेंज आता है इंफ्रारेड. इंफ्रारेड रेडिएशंस है. उसके बाद का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यानी ऑफ हायर वेवलेंथ, ऊपर अगर हम लोग जैसे जा रहे हैं तो ये आपका वेवलेंथ, तो रेड एंड से ज्यादा वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो है इंफ्रारेड. और इंफ्रारेड से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज नोन एज माइक्रोवेव्स. एंड उससे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दैट इज नोन एज रेडियो वेव्स. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के ऑर्डर में ये अरेंज है. तो इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं सीक्वेंस. जैसे रेड के बाद इंफ्रारेड आएगा, इंफ्रारेड से ग्रेटर वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो माइक्रोवेव्स है. उससे ग्रेटर वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज रेडियो वेव्स. तो इसके लिए एक ट्रिक है मैं बता रहा हूं. दिस इज वेरी फैंटास्टिक ट्रिक और ये अगर आपको याद रहेगा तो सीक्वेंस कभी भी आप भूलेंगे नहीं. विबग्योर से तो विजिबल स्पेक्ट्रम आपको याद रहेगा इसका सीक्वेंस, और इसके यानी रेड एंड के बियॉन्ड का जो सीक्वेंस है उसके लिए एक वर्ड याद रखना है, आई एम रेडियो. आई एम रेडियो. तो आई रेफर्स टू इंफ्रारेड. आई से आपका इंफ्रारेड हो गया, इसको लिंक कर दिया जाए. एम साउंड है, उससे माइक्रोवेव्स कनेक्ट कर दीजिए, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो. देन आफ्टर रेडियो वेव्स. तो आई एम रेडियो अगर याद रहेगा तो रेड एंड के बाद का जो सीक्वेंस है वो याद हो गया. ठीक है. अब वायलेट एंड के बियॉन्ड जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उसको कैसे याद रखेंगे. तो वायलेट एंड के जस्ट बाद उससे छोटा वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो है अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रेज जिसको बोलते हैं, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रे. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ स्मॉलर देन दैट ऑफ वायलेट रे. तो दिस इज इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देता है, ह्यूमन आई कैनॉट डिटेक्ट इट. फिर उसके बाद उससे छोटा वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज एक्स रेज. फिर उससे छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उससे छोटा वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है दैट इज गामा रेज. तो इसको याद रखना है, ग्रेट एक्स यूवी, GREAT, ग्रेट XUV. I think you are very familiar with XUV कार. XUV कार आप देखे होंगे और ये बहुत सुंदर कार है. तो
XUV कार से ग्रेट XUV अगर याद रखते हैं तो इससे इसका सीक्वेंस आपका बन गया। यानी देखिए ग्रेट यानी ये लास्ट से ग्रेट यानी गामा रेस, एक्स गामा के ऊपर आ जाएगा एक्स रेज, और एक्स रेज के ऊपर आ गया यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेस। तो ग्रेट XUV अगर याद रखते हैं तो वायलेट एंड के बियॉन्ड का जो स्पेक्ट्रम है उसका सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो द इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इट कंटेन्स फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स। तो इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका गामा रेज से रेडियो वेव्स तक के वेव्स आते हैं। तो इसका हम लोग अब सी हियर फ्रॉम हियर अगर हम यहां से देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो यहां वेवलेंथ आपका इंक्रीज हो गया है। लेट अस कंसीडर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंटायर स्पेक्ट्रम। तो जो पूरा स्पेक्ट्रम है यानी फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, इसका हम लोग अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इसको हम लोग समझ लेते हैं। सी हियर दिस इज विजिबल यानी विबग्योर, दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रॉम वायलेट लाइट टू रेड लाइट। इसका जो वेवलेंथ होता है दैट इज 400 टू 800 नैनोमीटर के रेंज का होता है। ठीक है, यानी 800 जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इट इज ऑफ रेड लाइट और 400 नैनोमीटर है इट इज ऑफ वायलेट लाइट। फिर इंफ्रारेड का रेडिएशन जो होता है वेवलेंथ, इंफ्रारेड का वेवलेंथ जो है इट रेंजेस फ्रॉम 800 नैनोमीटर टू 10 टू पावर 6 नैनोमीटर। फिर माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ है आपका 10 टू पावर 6 नैनोमीटर टू 10 टू पावर 10 नैनोमीटर के रेंज में माइक्रोवेव्स का आपका वेवलेंथ आ रहा है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे देख रहे हैं तो ये वेवलेंथ ग्रेजुअली आपका बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है ना। और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ होता है मैक्सिमम यानी इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है दैट इज 10 टू पावर 10 नैनोमीटर। अब बियॉन्ड वायलेट एंड अब हम लोग देख लेते हैं तो यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज का आपका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, और एक्स रेज का जो नैनोमीटर है ये है 10 टू पावर -2 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, और गामा रेज का सबसे छोटा वेवलेंथ होता है तो इट इज स्मॉलर देन 10 टू पावर -2 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, सब सिर्फ इसके बगल में एक जीरो बैठा देना है। जैसे कि एंगस्ट्रॉम के वैल्यू में एंगस्ट्रॉम के टर्म में अगर ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट का अगर वेवलेंथ एक्सप्लेन करना हो तो ये हो जाएगा आपका 400 है तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इसी ढंग से आप समझ सकते हैं। और वन मोर थिंग इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ इंटायर स्पेक्ट्रम ट्रेवल विथ द सेम स्पीड इन एयर एंड वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में जो इंटायर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ इंटायर स्पेक्ट्रम सभी सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं दैट इज 3 to 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हियर द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड आपका कांस्टेंट है, बट हियर वी फाइंड हियर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे माइक्रोवेव्स आपका ये विजिबल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 7.5 into 10 to power 14 हर्ट्ज टू 3.75 into 10 to power 14 हर्ट्ज के रेंज में होता है। और वैसे ही इसका आपका इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 3.75 into 10 to power 14 हर्ट्ज टू 3 into 10 to power 11 हर्ट्ज के रेंज में होता है। तो यहां एक चीज समझें कि हियर स्पीड इज कांस्टेंट। अगर ये वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ आपका घट जाएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कांस्टेंट। मान लीजिए कि इसका कांस्टेंट अगर हम 10 ले लेते हैं, f इंटू लैम्डा इक्वल्स टू 10। अगर f को 2 रखते हैं तो लैम्डा 5 होगा, क्योंकि इक्वल्स टू जो टोटल है प्रोडक्ट वो तो कांस्टेंट है 10। अगर लैम्डा को 2 रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपका 5 हो जाएगा। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा को बढ़ाएंगे तो पहला वाला घट जाएगा। तो आई थिंक
इस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट के हेल्प से इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब तक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड बिफोर दैट सी हियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटायर जो स्पेक्ट्रम है उसमें इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी आते हैं, इनविजिबल रेज आते हैं। तो सी हियर, तो ये इनविजिबल रेज है तो कैसे हम इसको फील कर सकते हैं? तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। सी हियर, द वेरी कॉमन एग्जांपल, द रिमोट कंट्रोल डिवाइस विच इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी हाउस, इट वर्क्स ऑन इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये इंफ्रारेड रेडिएशन पर ये काम करता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है इट इज इनविजिबल, दिखाई नहीं देता है। बट हियर we can detect it with the help of digital camera। जैसे कि see here, जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, this is digital camera and this is remote control device। तो यहां स्विच जैसे ही ऑन करते हैं, see here, तो this way you find that digital camera can detect infrared radiation। तो बट ह्यूमन आई जो है इसमें से रेडिएशन निकल रहा है, ह्यूमन आई कैनॉट डिटेक्ट इट। ह्यूमन आई आंख से ये दिखाई नहीं देता है। नाउ प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है, लेट अस डिस्कस। तो electromagnetic waves do not require any material medium to travel। electromagnetic waves को travel करने के लिए कोई भी material medium की आवश्यकता नहीं होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, no material medium required। no material medium यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और दे ऑल ट्रेवल विद द सेम स्पीड, that is speed equals to 3 into 10 to power 8 meter per second in vacuum or air। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, the whole spectrum, the entire spectrum of electromagnetic radiation that travel with the same speed in air or vacuum। air और वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करता है। ये हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन कम टू द थर्ड पॉइंट, they exhibit the property of reflection and refraction। ये क्या क्या शो करता है? reflection and refraction। refraction ये शो करता है, यानी entire spectrum of electromagnetic waves shows reflection and refraction। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, ये दोनों शो करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। यानी व्हेन दीज वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पासेस थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देन दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। और एक पॉइंट और है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। इसको ट्रांसवर्स वेव कंसिडर किया जाता है। ट्रांसवर्स वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंसिडर्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसको ट्रांसवर्स वेव्स हम लोग कंसिडर करते हैं। तो वंस अगेन हैव अ लुक, ब्रीफ फास्ट लुक ओवर प्रॉपर्टीज कॉमन टू all electromagnetic waves
तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट for propagation of electromagnetic waves no material medium is required. Figure second, all the electromagnetic waves यानी entire spectrum जो है that travel with the speed 3 into 10 to power 8 meter per second in air or vacuum, but in different medium their speed is different. अलग अलग मीडियम में उसका स्पीड आपका अलग अलग होगा. दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होगा और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी फॉलो होगा. अब रिफ्रैक्शन को अगर कंसीडर करें तो व्हेन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम देन बेंडिंग टेक्स प्लेस. बेंडिंग आपका हो रहा है. तो डिफरेंट मीडियम में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो आपका चेंज हो रहा है क्या, लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा आपका चेंज हो रहा है. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. तो दीज वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. फिर ट्रांसवर्स वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स. अब एक और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लिया जाए. तो व्हाइट लाइट एंड कलर इफेक्ट एंड कलर्ड लाइट एंड कलर्ड इफेक्ट. तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं व्हाइट लाइट में, तो उनका कलर हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, वेदर इट इज ब्लू, ग्रीन, रेड, है ना. लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्लेस्ड इन कलर्ड लाइट. अलग अलग कलर के लाइट में अगर हम उसको रखते हैं तब क्या इफेक्ट होता है, इसको समझ लेते हैं. जैसे कि सपोज करते हैं जो प्राइमरी कलर है रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन. अब यहां व्हाइट लाइट अगर इस पर करवाया जाएगा तो रेड ऑब्जेक्ट विल अपीयर रेड, ब्लू ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लू एंड ग्रीन ऑब्जेक्ट विल अपीयर ग्रीन. जो ग्रीन ऑब्जेक्ट है वो ग्रीन ही दिखाई देगा. ये तो बहुत क्लियर चीज है. लेकिन अगर रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों ऑब्जेक्ट रखते हैं अलग अलग, सी हियर, और इस पर रेड लाइट फॉल करते हैं, रेड लाइट. ठीक है, तो रेड लाइट, these three objects are placed under red light. तो रेड लाइट के अंदर इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है जिनके कलर रेड, ब्लू और ग्रीन हो. तो सी हियर वी फाइंड दैट ओनली वी आर एबल टू सी रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट, है ना. वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो कलर है रेड कलर दैट इज विजिबल, और रिमेनिंग टू ऑब्जेक्ट्स हैं उसके कलर विजिबल नहीं होते हैं. ये ब्लैकिश टाइप का नजर आता है, ब्लैकिश नजर आता है. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट हियर रेड लाइट इज फॉलिंग ऑन ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स, बट द रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, टोटल रेड लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है, लेकिन ये ब्लू और ग्रीन कलर के जो ऑब्जेक्ट हैं, इट एब्जॉर्ब्स द रेड लाइट, यानी ऑब्जेक्ट का जो कलर आता है उसी कलर के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है. एंड ड्यू टू दैट वी आर एबल टू डिटेक्ट इट्स कलर, है ना. इट अपीयर्स, और वो जिस कलर का होता है उस कलर का दिखाई देता है. तो वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर in white light, and we can very easily recognize the color of different objects in white light. क्योंकि white light में combination all colors available है, तो वो जिस भी कलर का रहेगा उस कलर को तो रिफ्लेक्ट कर ही देगा, तो उस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा. and when the reflected light enters into our eyes, then we can easily recognize the color of that very objects. क्योंकि आई के अंदर क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, दैट इज कोन. तो कोन का मेन काम है कि कलर डिटेक्शन. कोन जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑन रेटिना. आई के जो एक पार्ट है रेटिना, तो इस रेटिना हैज लाइट सेंसिटिव सेल्स. तो these cells detect the color and its name is cones. The cone cells present on the retina detect the color of light. अब सिमिलरली अगर रेड और ब्लू ग्रीन ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इस पर ब्लू लाइट इस
ब्लू लाइट के अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है। देन ओनली ब्लू कलर्ड ऑब्जेक्ट दैट इज विजिबल, क्योंकि ये ब्लू कलर इस पर फॉल कर रहा है, ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर दिया, बट वेयर एज रेड कलर्ड लाइट जो है और ग्रीन कलर्ड लाइट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई रेड कलर्ड एंड ब्लू कलर्ड हियर, यहां पर रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट जो है और ग्रीन कलर्ड ऑब्जेक्ट है, ये जो है वो ब्लैकिश दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस ढंग से जो है व्हाइट लाइट एंड कलर्ड लाइट का कलर इफेक्ट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।